ओके ऐसा नहीं कि कंसेप्ट के बीच में ही मैं डाउट पूछना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। हैव आई आस्क्ड व्हाट इज वेक्टर? नो, I only asked what is the physical quantity. I haven't asked what is vector, what is a scalar. First listen and then ask or tell any doubt. Please. Quantity which can be, yes, physical quantity, the quantity which can be measured by an instrument. तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेजर तो करना है मुझे। सपोज कि तुम 1000 ईयर पहले थे, 1000 ईयर पहले जब आदमी को पता नहीं था। ओके नाउ लिसन फर्स्ट, डोंट राइट, फर्स्ट लिसन। 1000 ईयर पहले थे, ठीक है। तो शुभांगी, एवरीवन फर्स्ट लिसन। जब मैं पूछूं कि हाँ अब ये बताओ, तब आंसर दो और तभी आंसर दो। ऐसा नहीं कि हम पूछ रहे हैं मैं 5 मिनट तक वेट कर रहा हूँ कि व्हाट इज योर आंसर। नो, आई विल वेट फॉर 1 मिनट। ओके तो फर्स्ट लिसन, जितना सुनिएगा उतना सीखिएगा। ओके if you want to grasp something, you have to listen carefully first. This is the first principle of reading. ओके हाँ, नोट्स बनाने हैं, मैं बताऊंगा क्योंकि मैं लिखवाऊंगा, हर कुछ का डेफिनेशन भी मैं लिखवाऊंगा। फर्स्ट I just want you to understand the concept first, okay? Then I will dictate the definition, okay? So first understand what is the meaning of physical quantity and how it is defined. If you measure something, then what should be the base of that measurement. So physical quantity जैसे अपन define कर रहे हैं, ठीक है। तो the quantity which can be measured is called measured by an instrument. So that quantity is called physical quantity. Emotion, pain is not a physical quantity because we cannot measure these quantities. Length, of course we can measure. Mass, of course we can measure. Speed also we can measure. So the quantity which can be measured is the physical quantity. So अब तो measure करना है मुझे तो पता है कि measure करना है। Yes, of course temperature we can measure, of course temperature. Now अब मुझे measure करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाँ ठीक है मेजर तो कर लिए, लेकिन ये कौन डिफाइन करेगा, ऐसा कुछ तो होना। जैसे मैंने बोला कि एक आपके पास स्केल होगा, ठीक है, स्केल। तो जो मीटर स्केल है या इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो स्केल होता है, दैट इज कैलिब्रेटेड विद द centimeter. This is 1 centimeter, this is 2 centimeter, this is 3 centimeter, this is 4 centimeter, 5 6 7 8 and 15 centimeter. If a scale is small, this is 15 centimeter. If a scale is large, this is 30 centimeter and so on. So how will you first calibrate the scale? How will you calibrate the scale? This quantity, this length is the 1 centimeter. How will you define it? First, what I am telling, are you getting my point? What I want to say? Calibration means marking. Calibration means marking of a scale. A scale is calibrated. Actually calibration word is used for the marking. Okay, so if you say the rod is 1 meter length, rod is 1 meter in length, so someone has also defined the this quantity is a 1 meter. If you say this quantity is 1 meter, according to you this quantity is 1 meter, but according to other
that quantity that quantity may be 1 meter, that quantity may be 1 meter, that quantity may be 1 meter. It depends on you. डिफरेंट कंट्री जैसे इंडिया बोलेगा कि नहीं मुझे तो भाई इतना ही छोटा वाला स्केल जो होगा ना, इतना छोटा स्केल जो होगा वो 1 मीटर का होगा। ऑस्ट्रेलिया बोलेगा नहीं मुझे इतना मीटर का होगा, इतना इतना लेंथ का होगा तो 1 मीटर का होगा। तो एम्बिग्युइटी है ना हर एक जगह, प्रॉब्लम तो हर कंट्री में फेस आएगा। ब्रिटिश बोलेगा नहीं मेरा यूनिट अलग है, कोई बोलेगा मेरा यूनिट अलग है, कोई बोलेगा मेरा यूनिट अलग है, तो देयर इज डिफरेंस। तो अपन अपन कैसे कैसे बताएं किसी को कि हाँ दिस क्वांटिटी जो है इतना ही लेंथ का जो होगा वो 1 मीटर होगा और दूसरा लेंथ का जो होगा वो 1 मीटर नहीं होगा, ये कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो एक इंस्टीट्यूट आती है, इंस्टीट्यूट कौन सा, स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो एक इंस्टीट्यूट है, वो डिफाइन करती है हर कुछ, कि वो हर एक कंट्री फॉलो करती है उस चीज को कि हाँ इतना लेंथ जो है, इतना लेंथ जो है वो वही 1 मीटर होगा। अब उसने डिफाइन कर दिया कि इतना लेंथ जो होगा वो वही 1 मीटर होगा, तो अब हर एक कंट्री जो है वो वही फॉलो करेगा कि हाँ ठीक है इतना मीटर जो है वो 1 मीटर होगा। ऐसा नहीं कि अब हर एक कंट्री अपना अपना स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट जो है वो चुन लेगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा चूज नहीं कर सकते अपन। क्यों? क्योंकि ऐसा अगर ऐसा हुआ तो सपोज कि तो ट्रेड में प्रॉब्लम हो जाएगा। ट्रेड में कैसे प्रॉब्लम होगा कि सपोज कि मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे एक स्टील है, ठीक है ना, स्टील मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन भेजना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगर मेरा स्केल अगर डिफरेंट होगा तो मेरा स्केल सपोज कि अगर बहुत छोटा है, ठीक है, वेरी स्मॉल, तो मेरे लिए इतना, अगर मैं बात करूँ इतना बड़ा स्टील जो होगा, इतना बड़ा स्टील वो मेरे लिए 5 मीटर हो जाएगा, 5 मीटर का स्टील होगा इंडिया के लिए। लेकिन अगर ब्रिटेन पहुंचेगा, ब्रिटेन का अपना यूनिट मेजर करेगा, बोलेगा नहीं ये तो 2 ही मीटर का है, क्योंकि मेरा स्केल बोल रहा है कि 2 मीटर का है तो 2 मीटर का है। लेकिन इंडिया बोलेगा कि नहीं मेरा स्केल जो है वो 5 मीटर बता रहा है, तो मानना होगा 5 मीटर है, 5 मीटर का मुझे पैसा चाहिए। लेकिन ब्रिटेन बोलेगा हम तो 5 मीटर का देंगे नहीं, 2 मीटर का पैसा दो मुझे, मैं 2 मीटर का ही पैसा दूंगा, तो प्रॉब्लम आएगा ना। तो इसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है ना वो आता है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जैसे ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आया तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये एम्बिग्यूटी हटा दिया कि जो है ठीक है आप सभी कंट्री जो है वो मैं जो डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब कि मैं ही डिफाइन कर रहा हूँ और उसको हर एक कंट्री फॉलो करेगा। तो अब हर एक कंट्री जो है उसके अकॉर्डिंग हो गया कि ठीक है डिफाइन करो। तो उसने, अब देखो, अब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, अब जैसे मुझे कोई काम दे दिया कि हाँ भाई मुझे बता दो कि कितना कितना लेंथ का 1 मीटर होगा, तो अब उसे भी डिफाइन करने के लिए सोचना होगा, अच्छा क्या माने क्या माने क्या माने क्या माने। ऐसा आर्बिट्ररी तो डिफाइन नहीं कर सकते ना, हाँ भाई लो इतना बड़ा को 1 मीटर बोल दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उसने कुछ चीज डिफाइन किया होगा कि हाँ ठीक है इस चीज को लेते हैं तो ये 1 मीटर हम माने। तो उसने लाइट का रेफरेंस लिया, लाइट का मीटर डिफाइन करने के लिए लाइट का रेफरेंस लिया। उसने बोला कि लाइट जो है, आपको ये सब ध्यान में नहीं रखना है, बस ये समझना है कि वो डिफाइन किया गया है, हर कुछ डिफाइन है, ये हर कुछ डिफाइन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर्बिट्ररी नहीं दिया है कुछ भी चीज, उसने हर कुछ जो है वो डेफिनेशन है, हर कुछ को डिफाइन करके बताया है कि अच्छा ये जो है अगर लाइट, उसने बोला कि अगर लाइट 1/3 लाख, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। यू नीड नॉट टू रिमेम्बर दिस ऑल द थिंग्स, ओके, बस समझिए कि हाँ ऐसा डिफाइन होता है, उसने किया है ऐसा डिफाइन। उसने बोला कि 1/3 लाख, 3 लाख किलोमीटर, अगर लाख 1/3 लाख सेकेंड में लाइट जितना ट्रेवल करेगा ना वही 1 मीटर होगा, उसने ऐसा बोला। तो फिर उससे मेजर किया गया कि अच्छा लाइट जो है 1/3 लाख सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला, अच्छा इतना डिस्टेंस चला, इतना डिस्टेंस चला। तो फिर हुआ कि अच्छा ठीक है इतना डिस्टेंस चला, तो इसका मतलब कि ये जो होगा वो
1 मीटर होगा। तो उससे पता चल गया कि अच्छा इतना इतना ही लेंथ। अब लाइट का स्पीड तो चेंज होगा नहीं, लाइट का स्पीड जो है वो वैक्यूम में चेंज होगा नहीं, तो मतलब कि वो हर जगह तो मीटर का जो लेंथ है वो हर जगह कांस्टेंट में मेजर करेगा। कोई भी कंट्री मेजर करेगा तो वही मेजर करेगा। तो अब जो हो गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने बोल दिया कि इतना इतना बड़ा लेंथ जो है वो 1 मीटर होगा। तो हर जगह जो है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में वो सब रखा हुआ है, स्टिक जो है वो चीज मेटल वो रखा जाता है कि इतना ही लेंथ का जो होगा वो 1 मीटर होगा। ठीक है, तो अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने डिफाइन कर दिया तो 1 मीटर हो गया। उसी तरह से मास भी डिफाइन हुआ है। अब मैं क्यों बोल दूं, हाँ ठीक है, इतना बड़ा किलोवाट जो मतलब इतना बड़ा केजी जो है एक मेटल का बार जो है, वो मैं बोल दूं कि 1 केजी है, तो कोई मान लेगा कि 1 केजी है? नहीं कोई। अभी जा रहे हैं, अभी सब्जी वाला है, ठीक है, बहुत बाहर में रहता है, आपको इतना बड़ा जस्ट किलोग्राम से मेजर करके दे दिया, ठीक है, वेजिटेबल, क्या क्या बोलेगा? वो बोलेगा 1 केजी है, मेरे लिए तो 1 केजी है। अब बोलेगा अरे ये कैसे 1 केजी कहाँ है, ये तो 250 ग्राम भी नहीं लग रहा, ये पाव के लिए जो अपन यहाँ महाराष्ट्र में बोलते हैं पाव के लिए केजी भी नहीं है ये। तो मतलब कि एक चीज का डेफिनेशन होना चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे हर एक जगह। ऐसा नहीं कि कोई अपने मन से बोल दे कि ये 1 केजी है, ये 1 केजी है, ये 1 केजी, ये 1 केजी। तो फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हर जगह जो यूनिट एक्चुअली होना चाहिए उसको मेजर किया। तो उसको भी डिफाइन करने के लिए कि 1 केजी कितना होना चाहिए, उसको भी डिफाइन करने के लिए उसने एक चीज रेफरेंस लिया, अब उस चीज को डिफाइन कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि इतना क्वांटिटी लिया उसने, और उसने बोला कि अच्छा इतना क्वांटिटी जो है वो 1 केजी होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो अब वही हर एक कंट्री को फॉलो करना होगा कि इतना ही क्वांटिटी जो होगा वो 1 केजी होगा। तो मतलब कि दीज आर द बेसिक थिंग जो मुझे डिफाइन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहा है। दीज आर द बेसिक थिंग्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसे डिफाइन कर रहा है। आर यू गेटिंग? एवरीवन, एवरीवन इज गेटिंग? ओके, तो हाँ ठीक है, तो अपन, हाँ ठीक है, ओके ओके गुड। ठीक, आई ओ अभी जिसने मैसेज किया 1IXD फलाना क्या क्या लिखा हुआ है, अपना नेम जो है वो रिनेम कीजिए, ठीक है ना? रिनेम करके जो एक्चुअल नेम है वो रखिए, नहीं तो फिर मैं लेक्चर से बाहर कर दूंगा। जो आपका नेम है एक्चुअल नेम, वो नेम रखिए, ठीक है? ओके, फिर मैंने वेट की बात की है अभी, नहीं किया ना वेट? वेट का मैंने अभी, वेट अभी कुछ मैंने अभी डिस्कस किया, वेट का नहीं किया। अभी मैं मास की डिस्कस कर रहा हूँ। मास एंड वेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैं मास की बात कर रहा हूँ। आप जब आप जब जाते हैं शुगर खरीदने के लिए या राइस खरीदने के लिए या वेजिटेबल, आप वेट नहीं, आप मास मेजर करते हैं, ठीक है ना? वो मास जो है वो वेट से रिलेटेड होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, वो डिस्कस करेंगे टाइम आने पे, ठीक है ना? कहा जाता है ना कि टाइम से पहले अगर मैं कुछ चीज बता दूं, तन्मय, अगर मैं टाइम से पहले बता दूं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक सीरीज 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पढ़ लिया फिर यहाँ का चीज यहाँ पढ़ लीजिएगा, तो फिर सर्कल में घूम जाइएगा सब, ठीक है ना? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा फिर, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए वेट मैं सीरियलाइज ढंग से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली है क्या, ठीक है? तो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया, मतलब टेम्परेचर। अब कौन बोलेगा कि अच्छा आपका बॉडी का टेम्परेचर, आप तो थर्मोमीटर से मेजर कर लेते हैं ना, थर्मोमीटर लगाए और मेजर कर लिया, अच्छा अच्छा,
100 डिग्री 100 फ़ारेनहाइट है। अब 100 कौन बताएगा भाई कि 100, अच्छा तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर इतना है तो वही 100 होगा, ये कौन बताएगा? नहीं बता पाएंगे ना अपन। तो मतलब कि उसके लिए भी कोई चीज बेस लिया होगा कि हाँ भाई इसको जो है अपन मानते हैं कि ये ऐसा है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन किए होंगे। जैसे मास मास के लिए इतना अमाउंट जो है वो मास मैंने सपोज किया ऐसा, इतना अमाउंट मास जो बोला मैंने 1 kg, तो 0 डिग्री सेल्सियस को रेफरेंस लेना होगा, या एक और चीज होता है उसको रेफरेंस लिया जाता है। मतलब कुछ चीज डिफाइन किया जाता है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो कुछ चीज को डिफाइन करता है कि हाँ इस ये ऐसा होगा और उसके रेस्पेक्ट में आप मेजर कीजिएगा। जैसे मैंने बोला कि 1 kg इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने मेजर कर दिया कि इतना जो होगा वो 1 kg होगा, तो आप उसके रेस्पेक्ट में, आपको 50 kg मेजर करना है तो उसके रेस्पेक्ट में ही मेजर होगा कि हाँ ठीक है उसने 1 kg डिफाइन कर दिया तो 50 kg जो होगा वो ऐसा ऐसा 50 टाइम्स होगा, तभी वो 50 kg होगा। तो वह उसी तरह से अगर कोई टेम्परेचर डिफाइन कर रहा है, टेम्परेचर, तो उसको भी डिफाइन करना होगा कि हाँ कौन सा 0 डिग्री सेल्सियस है भाई, कौन सा, तो एक रेफरेंस बताना होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रेफरेंस क्या है, आपका रेफरेंस क्या, वो आप हैं कौन? फर्स्ट आप अपने आप से सवाल पूछिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आप हैं कौन? व्हाट इज योर रेफरेंस? रेफरेंस आपका क्या है? आप देते हैं ना कि your name is not your reference, your father is your reference, your mother is your reference. आप हैं तो आप क्या लिखते हैं एड्रेस पे? दिस सन ऑफ पापा का नाम, सन ऑफ पापा का नाम, तो आप रेफरेंस डाल रहे हैं ना कि हाँ हम इनके बेटे हैं या बेटी हैं, ठीक है ना। आई एम अ सन ऑफ दिस, आई एम अ डॉटर ऑफ दिस, तो आप रेफरेंस डाल रहे हैं ना, यहाँ भी रेफरेंस ही डाल रहे हैं ना कि हाँ रेफरेंस है, मतलब कि पापा मम्मी हैं उसके बाद आप हैं, रेफरेंस है यहाँ भी। तो उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी में भी रेफरेंस है, कुछ चीज आपको डिफाइन करना होगा उसके बाद उस कुछ चीज डिफाइन होगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आर यू गेटिंग, आर यू एनालाइजिंग द फिजिक्स, व्हाट डू आई मीन? तो दैट रेफरेंस थिंग, ठीक है ना, जो रेफरेंस थिंग है जिसके बेसिस पे अपन डिफाइन करते हैं कोई चीज, तो कुछ चीज को डिफाइन करते हैं। अब मुझे 50 kg मेजर करना है तो मुझे एक चीज तो 1 kg तो डिफाइन कर दिया गया, 1 kg डिफाइन करने के कारण अब दूसरा कुछ अगर डिफाइन होगा तो वो तो, जैसे 1 kg डिफाइन किया गया तो ये तो एक बेस हो गया, बेस हो गया ना ये, कि हाँ भाई ये बेस हो गया। अब मुझे 50 kg डिफाइन करना है तो क्या होगा कि 50 kg ऐसा ऐसा 50 टाइम्स जो होगा वो 50 kg होगा, मतलब रेफरेंस क्या हुआ उसके लिए, 1 kg हो गया या नहीं हो गया? तो 1 kg, तो मतलब कहने का ये है कि ऐसा क्वांटिटी जो डिफाइंड हो, ठीक है ना, किसी के रेस्पेक्ट या कॉम्बिनेशन नहीं हो किसी का, मतलब उसको डिफाइन ही किया गया है, तो वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? टेल मी, क्या बोलते हैं उसे? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल है, फंडामेंटल का मतलब होता है दैट्स द बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी मतलब बेसिक क्वांटिटी है वो, उसके बेसिस पे आप कुछ चीज डिफाइन होगा। समझ में आ रहा है? उसके बेसिस पे, जैसे मम्मी पापा हैं तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब जो है आप जो है वो डिफाइन हो रहे हैं मम्मी पापा से, तो दैट्स, जो डिफाइन हो रहे हैं आप बेस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, आप जो डिफाइन हो रहे हैं वो जो डिफाइंड क्वांटिटी है उसको बोलते हैं डिराइव्ड, मतलब कि आप डिराइव्ड हैं, हम डिराइव्ड हैं, मैं डिराइव्ड हूं, मेरे मम्मी पापा बेस क्वांटिटी हैं, ठीक है। तो केजी इज द बेस क्वांटिटी, mass is the base quantity, length is the base quantity, temperature is the base quantity, time second is the base quantity, all are these things are the base quantity। and according, अब स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मीटर भी यूज हुआ, सेकेंड भी यूज हुआ, तो मीटर तो अपन मेजर कर चुके हैं किस में? लेंथ में, तो लेंथ तो बेस था,
और सेकंड किसे मेजर कर लेते, सेकंड भी डिफाइन होता है, तो वो भी बेस था। तो दो बेस क्वांटिटी का यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन है, दो में बेस क्वांटिटी से मिल करके एक न्यू क्वांटिटी बना है। तो वैसे क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। 2 से बन सकता है, 3 से बन सकता है, 4 से बन सकता है, 5 से बन सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है 5 का, कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 का, कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 का ही 3 टाइम्स रिपीटेशन हो सकता है, 4 टाइम्स रिपीटेशन हो सकता है। ऑफ कोर्स डिराइव्ड है। तो दैट्स व्हाई वी डिफाइन। बेस क्वांटिटी भी क्या है, डिफाइन होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि बेस क्वांटिटी कहीं से भी आ गया, बेस क्वांटिटी इज सेल्फ डिफाइंड, बेस क्वांटिटी भी सेल्फ डिफाइंड है ना। ऐसा थोड़ी है कि मास मास कहीं से आ गया, नहीं, मास भी तो डिफाइंड है। यस, डेंसिटी इज इवन डिराइव्ड। So everyone is getting, I think. So now your concept is clear now. So now your concept is easy now, I think, everyone. Yes, now write down the topic. I'm now putting that phone in a stand, okay? So I won't be visible. So now I'm putting my phone in a stand, okay? So first write down the topic. First write down the topic. This chapter name is measurement, units, dimensions and vectors. Measurement, units, dimensions and vectors. Okay, now this is the chapter name actually. Now write down the topic, physical quantity. Write down the topic, physical quantity. All are definition based, okay? All are definition based. There is no mathematical calculation yet. So when that will come, okay. Physical quantity, physical, PHYSICAL, physical quantity. Wait a second. Okay. Rustab. So measurement, units, dimension and vector. This is the chapter's name. Now first the physical quantity. Topic first, physical quantity. Just write it very quick. Do it fast, please. Write down what is physical quantity. Physical quantity. Now define physical quantity. Define physical quantity. I am dictating. The quantity, the quantity the quantity which can be measured, the quantity which can be measured, the quantity which can be measured जहां पे लिखना होगा मैं मोबाइल को स्टैंड में लगाऊंगा और वहां पे लिख के बताऊंगा, ठीक है ना। अभी डेफिनेशन है तो डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं उसके बाद, और मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सब कुछ,
so you won't have any problem, I think so. So when there is need to write, I will just put my phone on the stand. Okay. So oh, someone is saying what is the chapter's name? मैं 4 बार बोल चुका हूँ chapter's name. Please listen carefully. No, this is the new chapter. That was the in the previous lecture. That was the doubt lecture. So start from here. Okay. Unit dimension and vector. Unit dimension and vector. This chapter's name is measurement, unit dimension and vector. You can also write it as unit dimension and vector. Okay. Both are correct. Measurement, unit dimension and vector, or you can write it as unit dimension and vector. Okay. तो फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहे थे अपन, तो फिजिकल क्वांटिटी में द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, by an instrument. A physical quantity which can be measured by an instrument. Okay. So फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है ना. एग्जांपल में लिख लो, क्विक राइट डाउन एग्जांपल. लेंथ, एग्जांपल लेंथ, कॉमा मास, कॉमा स्पीड, कॉमा डेंसिटी, etc etc. ठीक है. बस इमोशंस फीलिंग सब नहीं होते हैं, ठीक है ना. नाउ प्लीज रिपीट. ये क्या है? ओके, नाउ रिपीटिंग. लेंथ, मास, स्पीड, डेंसिटी, etc. लेंथ, मास, length, mass, speed, density, etc. Okay. Now देखिए क्वेश्चन. डिफाइन यूनिट, डिफाइन यूनिट्स, UNITS, यूनिट्स. डिफाइन, क्वेश्चन लिखे नेक्स्ट. डिफाइन यूनिट्स. पहले यूनिट डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है एक्चुअली. ओके. देखिए ओके, लिखिए. अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स का डेफिनेशन लिखिएगा. अ फिजिकल क्वांटिटी a physical quantity is expressed, is expressed, is expressed a physical quantity is expressed in terms of, in terms of in terms of
a physical quantity is expressed in terms of an internationally of an wait a second, what is going in chat? Hriday Upadhyay, what are you sending? Hriday Upadhyay. Okay. So write down. Physical quantity is expressed in terms of an internationally accepted internationally accepted internationally accepted certain internationally accepted certain basic standard internationally accepted certain 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 basic standard certain basic standard certain basic standard called as unit called as unit. थोड़ा समझ लेते हैं इसको क्या होता है, what does it mean. So can you guess, if I tell 10, what does it mean? 10 meter, 10 meter per second, 10 meter 10 kg per meter cube, or something else. If I tell only 10, then what does it mean? So, suppose you are measuring the rod, length of the rod. Okay, you are measuring length of the rod, and I only expressed the length of the rod as 10. What does it mean? I only expressed the length of the rod as 10, only 10. What does it mean? Someone please answer. What does it mean? Nothing. 10 can be 10 meter, 10 can be 10 kilometer, 10 can be 10 millimeter, 10 can be 10 centimeter, 10 can be anything. Okay, so define a certain thing, we need a unit. Okay, 10 centimeter, 10 meter. If you say 10 centimeter, then in your mind, okay, this is 10 centimeter, मतलब rod इतना ही छोटा है. 10 meter, अच्छा मतलब rod बहुत बड़ा है. 10 millimeter, अच्छा rod इतना ही छोटा है. Okay, so 10, if you express something in a number, that does not define the exact quantity actually. Okay, so you need to define a certain thing that can actually express the quantity. So unit came into the picture. Okay, so if you tell the 10 centimeter is the length of the rod, then your mind actually accept, okay, 10 centimeter means this is the length actually, 10 centimeter. Okay, so we need to define the unit. That's why we need units. So any physical quantity which can be measured can be expressed in unit. Any physical quantity, of course, physical quantity, that means anything that can be measured. So physical quantity itself is defined quantity. So physical quantity can be defined as the number and unit. Suppose the physical quantity, if you tell the length is equal to what? Length is equal to 10
centimeter. Length is equal to 10 centimeter. Length is what? Physical quantity. So physical quantity is equal to something number into unit. Unit now 10 centimeter. Matlab 10 is the number and centimeter is the unit. So any physical quantity can be defined is equal to number into unit, or you can write, please write physical quantity equal to equal to का साइन देना, equal to physical quantity equals to का साइन देना, equals to मत लिख देना, ठीक है ना, equals to का साइन देना, ठीक है। लिख रहे हो? नोटेड? इक्वल्स टू लिखे, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू का साइन दिया, इक्वल्स टू के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल NUMERICAL न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन, इनटू मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ओके। इनटू का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इनटू यूनिट्स, इनटू यूनिट, इनटू यूनिट, इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन, इनटू यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। एग्जांपल लिखिए नीचे। These are all are theoretical things, not mathematical, okay। So now write down L, length is equal to, मतलब फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू था तो लेंथ इक्वल टू, एग्जांपल में लिख रहे हैं लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नोटेड? Everyone, do I need to repeat? Okay, so नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके here, so now change the paragraph। मैंने बोला लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इतना धीरे धीरे बोल रहा हूँ, उसके बाद अगर नहीं लिख रहे हैं तो यू शुड वर्क ऑन योर राइटिंग, ठीक है। सो नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, here 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 there might be some problem in pronunciation, okay, so don't mind। So here L, here sorry, here length is physical quantity, here length is physical quantity, comma, here length is, just पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, जस्ट नीचे वन लाइन के बाद नीचे, here length is physical quantity, comma डालना है, 10 लिखे हो ना, मतलब कि लेंथ इज इक्वल टू 10 यूनिट लिखे थे, 10 सेंटीमीटर लिखे थे ना,
तो मैं उसी को लिखवा रहा हूँ। Here length is physical quantity. 10 मतलब कि 10 को इन्वर्टेड कॉमा में रखना है, इन्वर्टेड कॉमा में रखना है, आता है ना, पता है ना इन्वर्टेड कॉमा में कैसे रखते हैं, कि 10 लिखें उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखिए। 10 is numerical value. 10 is numerical value. 10 is numerical value. 10 is numerical value. And सेंटीमीटर मतलब कि cm and cm, सेंटीमीटर लिखे हो ना, and cm is unit and cm is unit and cm is unit and cm is unit. Okay, so now, okay, should I proceed further? Okay, so now write down, types of physical quantity. Types of physical quantity. Types of physical quantity. Types of physical quantity. लिखे? No, not scalar, not vector. Types of physical quantity. This is the based on the measurement. This is based on the measurement. Okay. Types of physical quantity. Now write. First, there are first nahi. There are two types of physical quantity. There are two types of physical quantity. All are theoretical. That's why I'm not writing. Okay. Whenever mathematical something I need to write mathematically, then I will put my phone on a stand. Okay. So there are two types of physical quantity. First में लिखिए. Does anyone want me to repeat? Okay. I can dictate faster, but some person will leave behind. Okay. So there are two types of physical quantity. First, fundamental quantity. First, fundamental quantity. First, fundamental quantity. और फंडामेंटल क्वांटिटी को ही एक और नाम से जाना जाता है. ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलिए या उसको एक और नाम से जाना जाता है. फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी. BASE, बेस, बेस क्वांटिटी. बात कर रहे थे ना कि बेस लाइन होना चाहिए, वही है बेस क्वांटिटी. दैट इज द फंडामेंटल बेस क्वांटिटी.
Okay. Base quantity. So now define this. इसी को फर्स्ट को पहले लिखो क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके बाद आएंगे सेकंड में, ठीक है। डिफाइन कीजिए इसको। द क्वांटिटीज डिफाइन कर रहा हूं मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को। द क्वांटिटीज which cannot be the quantities which cannot be the quantities which cannot be expressed the quantities which cannot be expressed in terms of other quantities, क्योंकि वो डिफाइन ही हो रहा है तो किसी के रेस्पेक्ट में कैसे डिराइव हो सकता है, ठीक है। जब हम डिफाइन कर रहे हैं उसको, अगर उस चीज को मैं डिफाइन ही कर रहा हूं तो फिर मैं उसको एक्सप्रेस थोड़ी कर सकता हूँ। या जैसे मैंने मास को मैंने डिफाइन कर दिया, तो अब मैं उसको क्या बताऊं कि अच्छा अब मास का जो है कुछ चीज होगा तो उससे आया होगा, नहीं ऐसा नहीं है। मास को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन होगा कुछ दूसरा, ठीक है ना। तो उस चीज को मैं डिफाइन ही कर रहा हूँ, तो डिफाइन कर रहा हूँ तो किसी के क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफाइन मतलब कि डिराइव नहीं हो सकता, ठीक है ना, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम। समझ जाओगे जैसे आगे चलूंगा जैसे जैसे, तो all concept will be clear. Okay, so what I have dictated, quantity which cannot be expressed in other quantities. Okay, in terms of other quantities. Now write, उसी में लिखना it is independent of it is independent of it is independent of any other quantity, any other quantity, any other quantity. It is independent of any other quantity. Okay, any other quantity. I know time is running out. There goes. Someone is asking me to repeat again. So how can I go faster? How can I go fast? That's why I have to go slowly. Everyone is not fast in writing now. So repeat fundamental quantity. Okay. So the quantity which cannot be expressed, the quantity which cannot be expressed in terms of other quantities. Okay. This is full stop. It is independent of any other quantities. It is independent of any other quantities. Full stop. Okay. No, in this lecture we won't get any numericals, but after in second lecture onward we will have numericals. Okay, very short numericals, 2 lines, 3 lines, 1 line, all are theoretical actually, but we will make numericals from that. Okay, so first lecture is completely theoretical, and from second lecture onward we will have numericals, some numericals. Okay, so just
change the paragraph. Now change the paragraph. Now change this paragraph. How many of you uh, are studying this chapter once first time? How many of you are studying this chapter first time? Okay, okay, okay. Mm-hmm, 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 mm-hmm. Okay. So those who have done this chapter before, so those who have done this chapter before, is there any difference now? You are getting new things, new understanding, something different concept, something different methodology to explain the things. Okay, okay, cool. So now, okay, okay. So all the concepts, जो भी concept होता है ना, concept chapter में बहुत अच्छे से रहता है, ठीक है, लेकिन पता नहीं चलता है कि why, क्यों, ठीक है। आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते कुछ भी चीज, ठीक है। समझना, देखिए होता क्या है ना कि डेफिनेशन याद रखोगे तो उस दिन तक याद रहेगा, भूल जाओगे, लेकिन व्हाट दैट मीन्स, उसका क्या मतलब है, अगर वैसे पढ़ोगे तो याद रहेगा हमेशा। अब तुमको फिजिकल क्वांटिटी हो या यूनिट का क्यों यूज है, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, अब तुम सब मतलब कि 5 years के बाद भी होगा तो याद रहेगा, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज बहुत, हर हर एक बुक में तुम्हें डेफिनेशन जरूर मिलेगा, लेकिन व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या है ना, ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एक्सप्लेन नहीं होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज हर जगह, क्यों आया, व्हाई वी नीड टू डिफाइन द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, सो इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, व्हाई। फिजिक्स डिपेंड्स ऑन व्हाई। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है बस आ गया, मन हुआ, किसी साइंटिस्ट का पागल था, पागल साइंटिस्ट था, उसका मन किया डिफाइन करने का, डिफाइन कर दिया, दैट्स नॉट फिजिक्स। नेसेसिटी के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है हर जगह, ठीक है। ऐसे नहीं आ जाता है कि मन किया आ गया, ठीक है, कुछ चीज होता है तभी आता है। ओके चलो, तो देर आर सेवन, अब लिखो फंडामेंटल क्वांटिटीज में ही लिखो, देर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, देर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल। 50% जो है वो पहली बार पढ़ रहे हैं, 50% जो है वो कुछ पहली बार जो कुछ पढ़े होंगे स्टेप ऐप पे, और पहले क्लास 6 में भी या क्लास 7 में भी पढ़े होंगे, ऐसा भी है, कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे, तो डोंट वरी, मैं धीरे 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 आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो आप जो पहले पढ़े हैं उसमें कॉन्सेप्ट में, और अभी जो पढ़िएगा उसके कॉन्सेप्ट में बहुत डिफरेंस रहेगा, ठीक है। आई विल गिव यू क्लैरिटी with examples, don't worry, I will explain each word. Okay, so fundamental quantities are of 7 types.
लिखो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज है 7 टाइप का, मतलब वो डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। कौन डिफाइन किया है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने डिफाइन किया है, ठीक है। तो डिफाइन किया है तो इसका मतलब है कि 7 क्वांटिटीज डिफाइंड है, 7 क्वांटिटीज ही डिफाइंड है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट में लिखो मास, सेकंड लेंथ, टाइम, ठीक है। फोर्थ टेम्परेचर, फर्स्ट मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ, फिफ्थ लिखो इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ लिखिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो करंट वायर में जो फ्लो करता है ना, जो अभी एसी में जो बैठे हुए हो वो करंट पे ही चल रहा है ना। ओके फिफ्थ सिक्स्थ लिखो, फोर्थ, फोर्थ जो था वो टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ, सिक्स्थ लिखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कितना क्वांटिटी है सब्सटेंस का, इतना है इतना है इतना है। केमिस्ट्री में भी आएगा, मोल, ठीक है ना, मोल जो है वो केमिस्ट्री में भी आएगा। सेवेंथ, सेवेंथ लिखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस LUMINOUS ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट के लिए होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है वो लाइट के लिए, लाइट का कितना इंटेंसिटी है, ठीक है। मास तो आपको पता है, मास किसके लिए, अमाउंट ऑफ, सिक्स्थ जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिक्स्थ जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है ना। जो जो पेस में क्लास 7 में है स्टूडेंट उनको ये सब पता है, क्योंकि क्लास 7 में भी यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट्स है, तो क्लास 7 वाले भी अच्छे से पढ़ लेते हैं ये सब, ठीक है ना। जो क्लास 7 में पेस में पढ़े हैं और फिर 8 में अगर हैं तो उनको स्केलर वेक्टर सब आता है, मेजरमेंट्स यूनिट, मेजरमेंट डायमेंशन सब कुछ आता है, क्योंकि उनको क्लास 7 में बता दिया गया सब कुछ, जो अभी जस्ट 8 में इंटर किए हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में डिफाइन होता है, ठीक है ना। ओके ओके तो वी आर नाउ पेस इन पेस फैमिली, सो कंसेप्ट और क्लैरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। ओके सो मास जो है वो मास तो जानते ही हैं, किलो मास में आता है। लेंथ भी जानते हैं कि लेंथ कैसे मेजर होता है। टाइम, क्लॉक, टाइम मेजरमेंट हो सकता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी जानते हैं, टेम्परेचर जो है वो हीट से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक करंट जो अभी जिसपे अभी बल्ब बल्ब जो है वो चल रहा है, या क्या बोलते हैं इसको, जो भी लैंप है, फैन है, ठीक है, एसी है, सब करंट पे चल रहा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कि कितना अमाउंट है, अमाउंट मतलब कितना अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट से ही रिलेटेड है, ठीक है, लाइट से रिलेटेड है कि लाइट में कितना पावर आ रहा है, कितना, मतलब कि एक कैंडल को जला दें तो कैंडल से कितना लाइट आएगा, 2 कैंडल कितना लाइट, 3 कैंडल कितना लाइट, 4 कैंडल कितना लाइट, तो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको नहीं पढ़ना है कि ये एक्चुअली व्हाट डज दैट मीन, ठीक है।
कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी है क्या। ओके, करंट कैसे डिफाइन होता है, जैसे जैसे आगे चलेंगे सब कुछ डिफाइन करेंगे अपन, ठीक है ना। सेकंड लिखिए आप, सेकंड में लिखिए, जो फर्स्ट तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटी हो गया, सेकंड में लिखिए डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, सेकंड में लिखिए आप डिराइव्ड क्वांटिटी। एंगल एंड सॉलिड एंगल द सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है। सप्लीमेंट्री अभी नहीं जानना है। नो, जूल नहीं होता है वो, जूल भी नहीं होता है, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन होता है, तो सब अभी नहीं जानना है, ठीक है। जो जहां पे जानना होगा वहां बता दिया जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा अभी। अभी अभी आप लोग क्लास 8 में हैं, अभी बहुत टर्म अभी आप नहीं जान रहे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे धीरे धीरे टर्म जानना स्टार्ट कीजिएगा, तब समझ में आएगा। फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। आ रहे, चलिए लिखिए डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी डिफाइन कीजिए। सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी लिखिए। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का मतलब होता है जिसका यूनिट नहीं होता है, यूनिट्स नहीं है। फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री का मतलब सप्लीमेंट्री है वो ना ही फंडामेंटल है ना ही डिराइव्ड है, वो यूनिट ही नहीं है उसका, लेकिन तो भी यूज करते हैं, इसीलिए वो सप्लीमेंट्री है। जैसे होता है ना एग्जाम में सप्लीमेंट्री पेज ले लेते हैं, जो पेज दिया गया उसमें तो भरता नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। ओके, नाउ राइट डाउन derived quantity. ओके, सो derived quantity में लिखिए, लिखिए द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, derived क्वांटिटी का लिखिएगा द फिजिकल क्वांटिटी लिखे, द फिजिकल क्वांटिटी which is the combination of, which is the combination of which is the combination of one or more than one, which is the combination of, which is the combination of one or more, रिपीट, इतना स्लो लिखवा रहा हूँ उसमें अगर रिपीट हो रहा है मतलब योर राइटिंग स्पीड इज टू स्लो, टू स्लो। तो प्लीज उसको इंक्रीज करो, राइटिंग स्पीड प्लीज इंक्रीज कीजिए। द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी क्या लिखवाया है मैंने, द फिजिकल क्वांटिटी which is the combination of, the physical quantity which is the combination of one or more than
वन फंडामेंटल क्वांटिटी। द फिजिकल, अगर सबको सुनाई दे रहा है, किसी का अगर वॉइस ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब उसका नेटवर्क इशू है। द फिजिकल क्वांटिटी which is the combination of one or more than one fundamental quantity. A physical quantity which is combination of one or more than one fundamental quantities, fundamental important है, fundamental quantities, then it is derived quantities, then it is derived quantity. Then it is derived quantities. ठीक है, then it is derived quantities. Noted everyone? क्योंकि शायद इसका वीडियो लेक्चर में मिलेगा, मतलब कि रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, क्योंकि अभी तक मुझे लिखने की जरूरत नहीं हुई है, ठीक है ना। ओके, अगेन रिपीटिंग, कितना रिपीट करवाओगे यार। अ फिजिकल क्वांटिटी which is the combination of a physical quantity which is the combination of one or more than one fundamental quantity. Fundamental quantity is the derived quantity, is the derived quantity. क्या करूं, लिटिल बिट फास्टर नहीं हो सकता ना, अगर फास्टर होऊंगा तो कुछ अगर 70 स्टूडेंट्स हैं तो 70 स्टूडेंट में 20-25 स्टूडेंट पीछे छूट जाएंगे, इसीलिए आई हैव टू गो स्लो, दैट्स माय कंस्ट्रेंट. So now let me explain what is ओके, डिराइव क्वांटिटी की बात कर लेते हैं थोड़ा. जो भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने लिखवाया ना, उसके उसको छोड़ के जो भी हैं वो सारे जो हैं वो डिराइव क्वांटिटी हैं. एग्जांपल में लिखिए, एग्जांपल स्पीड, वेलोसिटी, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, नोट करना, फोर्स, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, एरिया, वॉल्यूम, एटसेट्रा, जो भी आ रहा है वो 7 क्वांटिटीज को छोड़ के जो भी आएंगे सब क्या होगा, डिराइव क्वांटिटी होगा. चलो एग्जाम्पल बताता हूँ. एग्जाम्पल में जैसे स्पीड में बोल रहा था, स्पीड, स्पीड इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये पढ़े हो कभी, कभी भी, एनीवन, डिस्टेंस अपॉन टाइम.
तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? लेंथ, लेंथ में मेजर करते हैं। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? लेंथ में। लेंथ होता है डिस्टेंस का मेजरमेंट। लेंथ कुछ भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। तो लेंथ होगा, डिस्टेंस का मेजरमेंट क्या है? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अब एक बात बताओ, लेंथ क्या है? फंडामेंटल है। लेंथ क्या है? फंडामेंटल। टाइम क्या है? फंडामेंटल। तो यहाँ पे दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज होके क्या बना है? स्पीड बना है। तो here two fundamental quantities are used for speed. So speed क्या होगा? डिराइव्ड होगा या क्या होगा? फंडामेंटल होगा स्पीड। तो स्पीड विल बी डिराइव क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन किसका है? दो या दो से ज्यादा का कॉम्बिनेशन है तो भी, तो ये क्या होगा? डिराइव्ड होगा। डिराइव क्वांटिटी। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, यही होता है ना वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब में मेजर करते हैं ना। वॉल्यूम को किसमें मेजर करते हैं? मीटर क्यूब। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम को किसमें मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब क्या होता है? मीटर मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। मीटर का मीटर किसमें है? मीटर का मतलब क्या होता है? लेंथ। लेंथ, ये भी क्या है? लेंथ है। तो मतलब कि एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी का यहाँ पे क्या है? रेपिटेशन हुआ है। एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या हुआ है? रेपिटेशन हुआ है। तो तो वॉल्यूम क्या होगा? डिराइव्ड क्वांटिटी। एरिया भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो जैसे जैसे आगे चलेंगे सबका डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वेलोसिटी क्या है, फोर्स क्या है, डेंसिटी क्या है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या है, एरिया क्या है। प्लीज राइट इट डाउन। प्लीज राइट इट डाउन। तो एवरीवन, सब लिख लिया ना? यस, पेरीमीटर इज आल्सो डिफाइंड। तो पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ, लेंथ ही होता है ना पेरीमीटर। सो नाउ वेलोसिटी इज आल्सो, वेलोसिटी बताएंगे, आगे चलते हैं तो बताते हैं। वेट करो, पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। अभी स्लो चल रहा हूँ क्योंकि अभी डिफाइन कर रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों का, सब मैंने स्टार्ट किया है फर्स्ट लेक्चर एक तरह से। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा फास्ट होंगे तब तक, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो जैसे जैसे चलेगा फिर सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट कि जिनका राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है, प्लीज बी फास्ट। यू आर द क्रिटिकल थिंग्स, क्रिटिकल पे हैं, क्योंकि आपको राइटिंग स्पीड ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। राइटिंग स्पीड फास्ट होना चाहिए हमेशा। प्रैक्टिस मोर। राइटिंग स्पीड स्पीड फास्ट कीजिए, राइटिंग स्पीड इंपॉर्टेंट है। तो सो सो वी आर नाउ concluding the lecture.
आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। सबको समझ में आ गया ना, या किसी को डाउट भी है?